Today, in this particular video tutorial, we are going to discuss about the excretion in humans and plants. So first of all, we have to know what is excretions, how we can define what is excretion. So excretion is nothing but the removal of harmful waste from the body is called excretions. There are different types of waste product form in our body. These are toxic agents. So many wastes are produced during various metabolic activities. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक दोनों तरह की एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। एनाबॉलिक में वो होती हैं जिनमें न्यू प्रोडक्ट का सिंथेसिस हो रहा होता है, और कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन ऑफ एनी प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़। तो हमारे बॉडी के अंदर कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। तो ये एक्टिविटी मिलकर के कहलाती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। सो वी कैन से दैट मैनी वेस्टेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ and these need to be removed in time because their accumulation in the body can be harmful and even lethal for an organism। इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, लीथल हो सकते हैं, हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए इनका बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। Now we are coming to the human excretory system. You can see in these pictures. Here you can see the human excretory system that is made up of a pair of kidney, a pair of ureter, and urinary bladder, and that urinary bladder and urethra. So we can say the human excretory system is composed of a pair of kidney, a tube called ureter comes out of each kidney and goes to the urinary bladder, and urine is collected in this urinary bladder from where it is expelled out through urethra. ये एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है यूरिथ्रा के एस एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत पड़ती है बॉडी को तब बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। इस पूरी सिस्टम पर, इस पूरे एक्सक्रेटरी सिस्टम पर कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। यानी इस प्रोसेस को हम कुछ हद तक ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। जब भी सेंसेशन आते हैं तो हम यूरिन को पास आउट कर देते हैं। Now next, the position you can see in the human body. There are two kidneys, left and right, two ureter, left ureter and right ureter, and one urinary bladder, and this is connected to the urethra. So इस तरह से we can say that this excretory system is placed in abdominal cavities. The kidney is composed of many filtering units. Here you can see this is kidney. So kidney is composed of many filtering units, and these filtering units is called nephron. Here you can see the nephrons. Nephrons are situated in these pyramids of kidneys. Nephron is called the functional unit of kidney. Okay, so now we are coming to discuss about the nephron. What is nephron? So here you can see clearly the nephron. So nephron, it is composed of a tangled mesh of tube and a filtering part. ये एक तरह से कैपिलरीज का नेटवर्क है। यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क है। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुलस पार्ट में कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। तो ये कैपिलरीज का नेटवर्क ग्लोमेरुलस बनाता है। Now glomerulus is a network of blood capillaries to which renal artery is attached. The artery which take blood to the glomerulus is called afferent arteriole, and the one receiving blood that is called the
रिसीविंग ब्लड दैट इज ब्लड जहाँ से आर्टरी से, जिस आर्टरी से ब्लड आ रहा है, हियर यू कैन सी द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द ऑर्टा टू एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आता है ग्लोमेरुलस के नेटवर्क में, यहाँ पे कैपिलरी के नेटवर्क से पास आउट होकर के, और ये जैसे ही फिल्टर आउट होके निकलता है ये होती है इफ्रंट आर्ट्रियोल। सो एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में और इफ्रंट आर्ट्रियोल से ब्लड पास आउट हो रहा है यहाँ से। सो नाउ ग्लोमेरुलस इज एनक्लोज इन ए कैप्सूल। जो ग्लोमेरुलस है वो एक कैप्सूल से एनक्लोज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे कैपिलरीज का ये नेटवर्क है, और ये जिससे ये कैप्सूल फॉर्म में जो ये बंद हो रहा है, एनक्लोज्ड हो रहा है कैप्सूल फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। दोनों बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों ही मिलकर के बनाते हैं मालपीजियन बॉडी। ये पूरी पूरी बॉडी इसको कहते हैं मालपीजियन बॉडी, जिसमें बाउमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में जब होते हैं तब इसको, इस फॉर्म को कहते हैं हम मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन बॉडी। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन इज द फिल्टरिंग यूनिट, यानी कि फिल्ट्रेशन का जो काम करते हैं वो नेफ्रॉन करते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं, ये इसके पिरामिड्स, बहुत सारे पिरामिड्स किडनी के अंदर होते हैं। और किडनी के दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कॉर्टेक्स पार्ट, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स पार्ट कहते हैं, और इनर पार्ट को इसको कहते हैं मेड्यूला। सो जो नेफ्रॉन जो फिक्स होते हैं वो कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों में ही पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स पार्ट और मेडुलरी पार्ट में दोनों में ही फिक्स रहते हैं ये। अब फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब अगर आप देखोगे कि ये जो जैसे ऑर्टा से किसी भी, हमें मालूम है कि किडनी इज ए ऑर्गन, और ऑर्गन के अंदर जो ब्लड आता है वो आता है हार्ट से सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू ऑर्टा लेके आती हैं। ऑर्टा जब ब्लड को किडनी में लेके आएगी तो वहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल में वो डिवाइड होकर के ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेकर के आएंगी। यहाँ पे देखिए, अब ग्लोमेरुलस इज नथिंग बट इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो जब आप देखोगे क्लियरली इसमें कि एफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है उसका डायमीटर बड़ा होता है, लार्ज डायमीटर है। तो लार्ज डायमीटर होने की वजह से ब्लड जो सप्लाई होगा इसमें ज़्यादा अमाउंट में होगा, यानी ज़्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में ब्लड आ रहा है। और ब्लड कैपिलरीज में, यहाँ पे जब ब्लड का कैपिलरीज का ये नेटवर्क है इसमें होके वो पास आउट होकर के, और इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स, दिस इज द इफ्रेंट आर्ट्रियोल, एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन द एफरेंट आर्ट्रियोल, दिस वन, एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स एंड इफ्रेंट आर्ट्रियोल्स. So efferent arterioles diameter is less than the afferent arterioles diameter. It means that इस डायमीटर की वजह से जो ब्लड ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जो आ रहा है वो ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क पे यहाँ पे प्रेशर डालता है, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है। इस प्रेशर जनरेट होने की वजह से ब्लड फिल्टर होता है। इस प्रेशर की वजह से ब्लड जो है फिल्टर होकर के बाउमन कैप्सूल में फिल्ट्रेट जो होता है वो चला जाता है। तो मेन रीज़न इसका है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल और इफ्रेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर में फ़र्क होने से ब्लड ज़्यादा मात्रा में ग्लोमेरुलस में आता है और कम मात्रा में प्रेशर के साथ में निकलता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होता है इसकी वजह से ही ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। सो व्हाट वी कैन से that filtration happens because of very high pressure inside the glomerulus। और ये आपको मालूम चल गया है कि ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, वो एफरेंट आर्ट्रियोल में मोर अमाउंट में ब्लड की सप्लाई आ रही है, बट उतनी ही मात्रा में इफ्रेंट आर्ट्रियोल से ब्लड निकल नहीं पा रहा है। इसलिए वजह से यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए। सो the lumen of efferent arteriole is smaller than that of the afferent arterioles. We have been discussed about this. Due to this, the blood entering the glomerulus experience very high pressure, and due to this, the waste products
द वेस्ट प्रोडक्ट आर फिल्टर आउट थ्रू द थिन मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज इन द ग्लोमेरुलस, तो इन ग्लोमेरुलस में थिन जो मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन होती है कैपिलरीज की, उससे प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ से ब्लड जो है फिल्टर हो जाता है, सो द फिल्टर ब्लड इज सेंड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब जो फिल्टर जो होके जो ब्लड जाएगा वो एफरेंट आर्टियोल्स के द्वारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचा दिया जाता है। तो ये एफरेंट आर्टियोल्स के थ्रू फिल्टर होकर के निकल जाता है, गोज टू द बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल से बाहर निकल जाता है। नाउ दैट इज हाउ यूरिन इज फॉर्म इनसाइड द किडनी। यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में ही होता है, इस वजह से होता है कि ये प्रेशर जो पड़ता है, प्रेशर जनरेट होता है, इससे ही ब्लड में से जो वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं वो बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे जो आप शो कर रही है येलो कलर में जो बोमन कैप्सूल आपको दिख रहा है, इसमें प्रोसेस दिखाई रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दीज आर द प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस में फिल्टर हो रहा है, तो इसमें इसका मतलब है इसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो रही है। फर्स्ट प्रोसेस फिल्ट्रेशन की हो रही है, यानी ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया। नाउ सेकंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अगर कोई मान लो फिल्ट्रेशन के बाद में अगर कोई इंपॉर्टेंट सब्सटेंस अगर फिल्ट्रेट में आ जाते हैं तो उनका रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है एफरेंट आर्टियोल्स की मेम्ब्रेन्स के द्वारा, तो उसको रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और रीअब्जॉर्प्शन के बाद में अगर एफरेंट आर्टियोल में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट फिर से भी रह जाते हैं तो एफरेंट आर्टियोल्स की मेम्ब्रेन्स के थ्रू और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होती है नेफ्रॉन्स की, इस नेफ्रॉन्स की प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के द्वारा सीक्रेशन हो जाता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट वेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं उनको फिर सीक्रेशन कर दिया जाता है थर्ड प्रोसेस में। और लास्ट प्रोसेस जो फोर्थ प्रोसेस है, इसमें यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बार फिर से देखेंगे हम ये नेफ्रॉन की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो नेफ्रॉन की जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है, दिस फॉर्मेशन ऑफ द कैपिलरीज नेटवर्क इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस का जो एक कैप्सूल जिस स्ट्रक्चर में जो ग्लोमेरुलस बंद है उसको कहते हैं बोमन कैप्सूल। और बोमन कैप्सूल एंड कैपिलरीज का नेटवर्क ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर के जो बॉडी बनती है उसको कहते हैं मालपीजियन बॉडी। इसके अंदर जो मोर डायमीटर जिसका होता है वो एफरेंट आर्टियोल होती है और जो लेस डायमीटर होता है वो होती है एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेके जाती है और एफरेंट आर्टियोल जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से बॉडी तक यानी किडनी तक ब्लड को लेके आ रही है। अब यहाँ से जो ये कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स दिखाई रही है ये होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स और ये लास्ट में जाकर के चली जाती है हेनलेज के लूप में और बाद में हेनले लूप से ये आती है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, ओनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन तो हो जाता है इसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में और केवल वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यानी कि यूरिन को जो गाढ़ा बनाने का काम करता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने का काम करता है, वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में होता है क्योंकि यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से यूरिन जो है गाढ़ा हो जाता है यानी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और वो कलेक्टिंग डक्ट्स द्वारा कलेक्ट करके यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। तो इसमें जो रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं किडनी यानी वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ excretory systems. Now we are coming to the excretion in plants. Before coming to the excretion of plant, we have to know the path of the excretory system. इसका पाथ हम जान लेते हैं कि यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है तो वो किस किस पाथ से पास आउट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड फिल्ड विद वेस्ट मटेरियल, जब ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल आ जाते हैं तो वो डोर्सल ऑर्टा के थ्रू रीनल आर्टरी में पहुंच जाते हैं। रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टियोल में यानी नेफ्रॉन में ब्लड जाता है। एफरेंट आर्टियोल जिसका डायमीटर लार्ज डायमीटर होता है, जिसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है, तो एफरेंट आर्टियोल से नेफ्रॉन में ब्लड जाता है तो नेफ्रॉन में एक ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क क्रिएट करता है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस में प्रेशर जनरेट होता है क्योंकि एफरेंट आर्टियोल से जो ब्लड निकल के जाता है उसमें कम मात्रा में ब्लड निकल के जाता है, मोर अमाउंट में एफरेंट आर्टियोल से इंटर करता है
और पास आउट कम मात्रा में होता है। इस वजह से वहाँ पे प्रेशर जो जनरेट होता है उसकी वजह से ब्लड जो है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। अब ब्लड का फिल्ट्रेशन होने के बाद में ब्लड का फिल्ट्रेट जो बनता है वो बोमन कैप्सूल में आ जाता है। बोमन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में जाता है, जहाँ पर कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स या सॉल्ट या फिर H2O जो होता है उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में होता है। उसके बाद में वो हैनले के लूप में जाते हैं, देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में जाते हैं। अब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स जो होती है उसमें वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, जिससे कॉन्सेंट्रेट यूरिन जो है कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, यानी यूरिन गाढ़ा हो जाता है। अब वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट्स द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से पिरामिड्स में जाता है, पिरामिड से पेल्विस में, पेल्विस से यूरेटर में जा करके फिर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आ जाता है। अब यूरिन जो यूरिनरी ब्लैडर में आता है वो यूरिथ्रा के थ्रू एक्सटर्नल ओपनिंग के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सो दिस इज द पाथ ऑफ यूरिन। किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन में आकर के मिल जाते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस। नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सक्रिएशंस इन प्लांट्स। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स डू नॉट हैव एन एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं। सो दे रिमूव वेस्ट सब्सटेंस थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। बॉडी के वेरियस पार्ट से ही वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। सो ऑक्सीजन हेयर इज द बेस्ट प्रोडक्ट आर एक्सक्रिएशन, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड सम एल्केलॉइड्स। तो इनका जो एक्सक्रीशन जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स आर रिमूव्ड थ्रू डिफ्यूजन। मैनी वेस्ट प्रोडक्ट गेट कलेक्टेड इन ओल्ड लीव्स एंड रिमूव विद शेडिंग ऑफ द लीव्स। जब वेस्ट प्रोडक्ट जब लीव्स में कलेक्टेड हो जाते हैं तो उसकी शेडिंग कर ली जाती है, शेडिंग कर दी जाती है, पत्तियां टूट के गिर जाती हैं। रेजिन्स एंड गम्स जो होते हैं वो बार्क के थ्रू, यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द एल्कलॉइड्स, गम्स एंड रेजिन्स। यहाँ पे लेटेक्स आप देख रहे हो, ये दिस इज आल्सो इज ए बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ लेटेक्स, जिससे रबर बनाई जाती है। गम इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड लेटेक्स इज इम्पोर्टेंट टू मेक रबर टायर्स। जो उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे लेटेक्स जो है इनके लिए, प्लांट्स के लिए लेटेक्स बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है। तो इसका बेस्ट प्रोडक्ट को ह्यूमंस कलेक्ट करते हैं और इसको फैक्ट्रीज में प्रोसेस के थ्रू इसको रबर बना ली जाती है, उनसे टायर्स और अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स बना लिए जाते हैं। गम्स जो है वो लेंटिकल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं और स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो इनके हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में एक्सक्रेटरी सिस्टम अलग से नहीं मिलता, बल्कि इसको बहुत ही सिंपल होता है। ये जो प्लांट का जो एक्सक्रेशन होता है वो स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। सो वी कैन से द प्लांट डू नॉट हैव एन एक्सक्रेटरी सिस्टम, दे रिमूव वेस्ट सब्सटेंस थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। Oxygen and carbon dioxide removed through diffusion, and many waste products get collected in old leaves and are removed with shedding of the leaves. Resin and gums contain waste substances, and these are removed through lenticels and stomata of the leaves. So this is the excretions in plants. So now you understand very well excretion in human and excretion in plants.